to my dear students. Myself Akanksha Swastav and I am here again to teach you science. Children, yesterday I gave you the homework to learn word meaning of chapter 5. So, before starting this chapter, let's take out your rough copy and note some words. After this class, you have to write the meanings of these words. First word is ionization. Second is indicators. First is ionization, second is indicators, third is litmus, and last word is milk of magnesia. Note these words in your rough or SW copy. Okay? Let's take out your book. Open page number 60. Let's do reading. Classification of compounds into acids, bases and salts make the study easier. Various substances of our daily importance contain these chemical compounds. Mainly the food substances give a specific taste due to the presence of these compounds. The word acid is derived from Latin word acer, meaning sour to taste. The sour taste of many foods is due to an acid or acids present in them. For example, sour taste of lemon is due to citric acid, that of grapes due to the tartaric acid, etc. Children, compounds. कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन मीन्स उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देना, एसिड, बेसिस और सॉल्ट में. ये हमारे लिए स्टडी करना कंपाउंड्स की इजी कर देता है. कई सारे फूड स्टफ खाने की चीज़ों में और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें कई सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. Some of them contains acids and some of them contains bases or salt. Okay? बहुत सारे फूड आइटम्स में जो टेस्ट होता है वो इन कंपाउंड्स की वजह से ही होता है. एसिड जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एसर से लिया गया है जिसका मतलब होता है सोर टू टेस्ट. सोर मीन्स होता है खट्टा, सोर टू टेस्ट. एसिड लैटिन वर्ड एसर से बना है जिसका मतलब होता है सोर टू टेस्ट, मतलब खाने में खट्टा. वो चीजें जो खाने में खट्टी होती हैं उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल लेमन. लेमन में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड. इस साइट्रिक एसिड की वजह से ही लेमन का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है. फॉर अनदर एग्जांपल इज ग्रेप्स. ग्रेप्स में भी एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टार्टेरिक एसिड. इस टार्टेरिक एसिड की वजह से ही ग्रेप्स का टेस्ट सोर होता है. क्लियर? Let's say in your book, bases are bitter to taste and hence very few bases are present in edible compounds but form a variety of other products like soaps, detergents and cosmetics. Salt possesses a salty taste as that of common salt we consume in our daily life. Some salts are also tasteless, that is, they do not produce any specific taste. Next compound is bases. Children, bases are bitter in taste. बेसिस का स्वाद कड़वा होता है और इस कड़वे स्वाद के कारण ये बहुत कम ही खाने की चीजों में प्रेजेंट होते हैं. बेसिस का हम अदर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं जैसे कि सोप में होता है बेसिस का यूज, डिटर्जेंट में होता है, एटसेट्रा. एंड लास्ट कंपाउंड इज सॉल्ट्स. आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. सॉल्ट का कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, इसका कोई विशिष्ट प्रकार का स्वाद नहीं होता है. सॉल्ट जो होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं, मींस स्वादहीन होते हैं. एक कॉमन सॉल्ट है जिसका नाम है NaCl, दैट मींस सोडियम क्लोराइड. ये सॉल्ट है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और इस सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है, दैट मींस नमकीन होता है. क्लियर? नाउ सी इन योर बुक ऑन पेज नंबर 61 हियर इज अ टेबल गिवन. सी इन योर बुक पेज नंबर 61 दिस टेबल.
Here are some food substance given. यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ों के नेम दिए हुए हैं. You have to taste these substances and write which is bitter in taste and which are grouped as bases. किसको आप ग्रुप करोगे बेस में. टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको कंप्लीट करना है. Children, if you have any substance present at your home, you can do this activity at home. Okay? Let's see next paragraph. In the above table, you must have noticed that maximum food stuff contain acids and bases are least preferred. This is due to the fact that acids makes the taste appealing and nobody of us want to have or consume bitter food substances. Children, इस टेबल से हम देखेंगे कि खाने की ज़्यादातर सामग्री में एसिडिक टेस्ट होता है. दैट मीन्स वो सोर होते हैं और बेसिस जो होते हैं उनको कम प्रेफर किया जाता है, कम पसंद किया जाता है. एसिड्स जो होते हैं उनका टेस्ट सोर होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं और उनको हम खाने में पसंद करना चाहते हैं. बट बेस जो होते हैं उनका स्वाद बिटर होता है, उसको हम खाने में पसंद नहीं करते हैं. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, एसिड्स. Let's do reading. We have already read about the acids. Most of the acids present in foodstuff are mild acids. Mild means soft. That is, they do not harm our body in normal amount. But all acids are not mild. Some of the acids are harmful and highly corrosive. When such acids fall on our body, they produce burning sensation and even charge the skin, turn the skin black. Hence, acids should be handled with care. Acids can be broadly classified into two types, organic acids and mineral acids. हमारे जो फूड स्टफ होते हैं मतलब खाने की सामग्री होती है उसमें माइल्ड एसिड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हल्के एसिड प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं. लेकिन सभी एसिड सॉफ्ट नहीं होते हैं. कुछ एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, विनाशक प्रभाव होता है उनका. अगर ये एसिड हमारी बॉडी पे, स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन का कलर ब्लैक हो सकता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन भी हो सकती है. एसिड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इजली स्टडी के लिए. फर्स्ट इज मिनरल एसिड एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक acid. We can divide acids into type. Let's do reading. Acids are the compounds containing hydrogen ion which when dissolved in water produces hydronium ion. For example, HCl hydrochloric acid. Children, एसिड्स जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होता है, मीन्स H+ आयन प्रेजेंट होता है. जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? H+. जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है. और जब हम इन एसिड को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, मीन्स घोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से समझते हैं. टेक एग्जाम्पल ऑफ HCl, that means hydrochloric acid. You all know H have plus charge and Cl have minus charge. When we dissolve this acid with water, जब हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो हमारा बनता है हाइड्रोनियम आयन. that means H3O and क्लोरीन अलग हो जाता है. इस तरीके के कंपाउंड को हम एसिड्स बोलते हैं, मतलब जिसमें प्लस आयन होता है और जो वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे H3O दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन देता है, उसको हम बोलते हैं, उन सभी कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिड्स. क्लियर? टुमारो वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एसिड. नोट ऑन होमवर्क HW. राइट 6 lines on acids and send your homework on my WhatsApp number. Thank you class.